راجو مجھے آ کر کہنے لگا چلو ناشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا ناشتہ تیار ہے۔ راجو یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھونے لگا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ جو کچھ رات میں ہوا وہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ حقیقت میرے کانوں میں یہ آواز گونجی، یہ آواز رینوکا دیوی کی ہی سرگوشی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ تم کہاں ہو، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ تبھی رینوکا دیوی نے مجھے کہا میں جب چاہوں تمہارے سامنے جسمانی طور پر آ سکتی ہوں، فی الحال میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، میں جا رہی ہوں۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن اس نے اس وقت میری ایک بھی نہیں سنی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں جب ڈائننگ ہال میں پہنچا تو بابا اور راجو کو بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ پھر میں نے بابا سے اجازت لی اور باہر جانے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا تو راجو نے میرا راستہ روک لیا۔ کیا آج آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ راجو نے میرے چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ راجو، تمہیں معلوم ہے میرے دشمنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور میری چاروں طرف موت کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں مزید کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ پہلے ہی تم میری وجہ سے گولیاں کھا چکے ہو اور جو زخم تمہارے جسم پر آئے تھے میں انہیں نہیں بھول سکتا۔ اب میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا۔ راجو کو میری یہ بات بہت عجیب لگی لیکن پھر بھی میں نے اس کو پیار کے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ راجو بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ مجھے غیر سمجھتے ہیں۔ وہ بہت جذباتی تھا۔ نہیں راجو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے میری بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے راجو کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اس سے کہا۔ بابا سے ہم دونوں نے اجازت لی اور اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ بابا کو مسکراتا دیکھ کر ہم دونوں بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکے۔ ہم کار تک پہنچے تو راجو نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے روک دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی گیئر میں ڈال کر میں تیز رفتاری سے روڈ پر چلا رہا تھا۔ میرا رخ ٹائیگر کے علاقے کی طرف تھا۔ راجو بالکل خاموش بیٹھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اچانک ہی میری چھٹی حس نے مجھے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ میں بے چینی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ممبئی کی سڑکوں پر روزمرہ کی طرح ٹریفک رواں دواں تھی۔ میرے دائیں بائیں دیکھنے کے باوجود کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود میں نے تیزی سے پسٹل نکال کر اپنی گود میں رکھ لی۔ ہم تقریباً 20-25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ٹائیگر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا، نہ جانے کہاں سے فائر آ گیا کیونکہ گولی بالکل میرے پیر کے پاس سے ہو کر گزری تھی۔ میں نے تیزی سے کار سے باہر چھلانگ لگا دی اور رولنگ کرتا ہوا دور جا کر نکلا۔ میں جیسے ہی رکا، نہ جانے کس طرف سے دوسری گولی بالکل میرے سامنے 1 فٹ کے فاصلے پر زمین پر لگی۔ گولیاں سمتیں بدل بدل کر چلائی جا رہی تھیں، اس وجہ سے مجھے سمت کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے سے پہلے ہی دوسرے قدم سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے دوسرا قدم اٹھایا، گولی بالکل میرے پیر کے قریب لگی۔ صرف ایک لمحے میں میں نے اپنا رخ تبدیل کر کے فائر کھول دیے۔ جیسے میں نے پسٹل سے فائر کھولے، وہ ٹھیک نشانے پر لگے اور جو سامنے کھڑا تھا، جو مجھ پر فائر کر رہا تھا، اس کے سینے پر گولی لگی اور وہ زمین پر گر کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اوپر کئی سمتوں سے فائرنگ کی گئی لیکن اب میں آسانی سے سمتوں کا تعین کر کے فائرنگ کر رہا تھا۔ خیر، اب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں۔ اب کسی نے فائر مارا تو میں ٹائیگر کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ راجو اپنی پسٹل ٹائیگر کی کن پٹی پر لگا کر فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میں ٹائیگر تک پہنچ گیا۔ ٹائیگر، تم بہت بھاگ چکے ہو۔ کہاں ہے آج تمہارا محافظ گھرداری لال؟ آج تم ٹائیگر کے علاقے سے اپنی ٹانگوں پر نہیں جا سکتے۔ ٹائیگر کسی خونخوار کتے کی طرح گھرایا۔ میرا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ٹائیگر کسی فٹ بال کی طرح دور جا کر گرا۔ ٹائیگر جیسے ہی کچھ فاصلے پر گرا، اس کے 2-3 وفاداروں کی پسٹل کا رخ ہماری طرف ہو گیا لیکن میں غافل نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے، میں نے یکے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ ان چاروں کو وہیں پر میں نے ڈھیر کر دیا۔ ٹائیگر، تم اس دن تو بچ گئے تھے گھرداری لال کی وجہ سے، لیکن آج تم بچنے والے نہیں ہو۔ آج تم میرے ہاتھوں کتے کی موت ضرور مرو گے۔ میں نے پسٹل کا رخ ٹائیگر کی طرف کیا لیکن قبل اس کے کہ میں گولی چلاتا، ٹائیگر کے چاروں طرف دھواں سا پھیلتا گیا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا، میں نے وہاں پر دیکھا، یہاں ٹائیگر نہیں تھا لیکن دھوئیں کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی غائب ہو چکا تھا۔ گھرداری لال، تو کب تک میرے ہاتھوں سے ٹائیگر کو بچائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا بندوبست
करूं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजू निकलो यहाँ से फ़ौरन, तेज़ी से, मैंने चीखता हुआ बोला। इससे पहले कि हम लोग वहाँ से निकलते पुलिस मोबाइल हम तक पहुँच गई। शायद बस्ती में किसी ने इत्तला दे दी थी। टाइगर एक बार फिर मेरे हाथों से निकल गया। मुझे इस बात का बहुत दुख था। राजू मेरी वजह से नाहक मुसीबत में उलझ गया था। हमारी पिस्टल पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले ली थी। हमें जानवरों की तरह पुलिस मोबाइल में डालकर थाने में बने इलाकों में बंद कर दिया गया था। मैं चाहता तो यहाँ से बड़ी आसानी से फ़रार हो सकता था, लेकिन मेरे फ़रार होने के बाद इस गरीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इस पर मुसीबतें नाजिल हों। मैं यही सोच ही रहा था कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, और इसी दिन मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया था। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजू, इस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लाने से रोक रहा था, मैंने गुस्से से अपना निचला होंठ काटते हुए कहा। इससे पहले कि राजू मेरी बात का कोई जवाब देता, मेरे कानों में रेणुका देवी की सरगोशी सुनाई दी। शहरयार, टाइगर और गिरधारी लाल ने बाबा को अगवा कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ये सुनते साथ ही मैं उछलकर खड़ा हो गया और मैंने अजीब से लहजे में कहा, क्या, ये तुम क्या कह रही हो? राजू मुझे यूं अजीब नज़रों से देख रहा था जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। शहरयार, मुझे अभी पता चला है, मैं फ़ौरन तुम्हें बताने आ गई हूँ, लेकिन टाइगर और बाबा को गिरधारी लाल ने हिसार के अंदर रखा हुआ था, इसलिए मेरी रसाई वहाँ तक मुमकिन नहीं थी। मैं मजबूर थी। क्या हमारा यहाँ से बाहर निकलने में साथ दे सकती हो, या ये भी तुम्हारे बस में नहीं है? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकती हूँ। रेणुका ने मेरे लहजे की तंज को महसूस करते हुए कहा। पहले तो किसी तरह से हमारी पिस्टल हम तक वापस पहुँचाओ, मैंने खिला में घूरते हुए कहा, और मेरी बात सुनते ही वो चली गई। शहरयार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम किससे बातें कर रहे हो? राजू ने मुझे हैरत से देखते हुए पूछा। राजू, बाबा को टाइगर और गिरधारी लाल ने अगवा कर लिया है, मैंने बेचैनी से टहलते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? राजू की बुखलाहट पर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे हवाओं ने बताया है, मैंने इसी बुखलाहट में मुस्कुराते हुए कहा। ठीक इसी लम्हे एक इंस्पेक्टर हाथ में पैकेट लिए आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। शहरयार, ये तुम्हारे लिए आया है। मैंने आगे बढ़कर पैकेट इसके हाथ से ले लिया। वो तेज़ी से जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला गया। इसे जाते देखकर मैंने तेज़ी से पैकेट खोल दिया। पैकेट के खुलते ही राजू की हैरत से आंखें बाहर निकल आईं। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। आखिर तुम्हें क्यों इन लोगों ने लाकर पिस्टल दे दी? राजू अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था। तभी मैंने राजू की तरफ एक पिस्टल बढ़ाया और राजू को कहा, ये पिस्टल अपने पास रखो और यहाँ से अब निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी जो भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे उसे बेदरेर गोली मार देना। हमें हर सूरत में बाबा तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए हमें कितना ही खून क्यों ना बहाना पड़े। सब इंस्पेक्टर के जाते ही सिपाही अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया और मुझे मालूम था कि लॉकअप की चाबी इसके पास है। मैं तेज़ी से चीखने लगा। सिपाही दौड़ता हुआ लॉकअप के बाहर आकर खड़ा हो गया। मेरी नज़र दूसरी तरफ थी। वो सुलाखों के करीब आकर इसी तरफ देखने लगा जिस तरफ मैं देख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन को दबोच लिया और तेज़ी से दूसरा हाथ इसके मुंह पर रख दिया। राजू ने हाथ बढ़ाकर इसकी पेटी से लटकी चाबी को निकाला। मेरे इशारे पर राजू ने पिस्टल का पिछला हिस्सा इसकी खोपड़ी पर दे मारा। वो बगैर कोई आवाज़ निकाले वहीं पर ढेर हो गया। राजू ने आगे बढ़कर लॉकअप का दरवाज़ा खोला। राजू का दरवाज़ा खोलते ही न जाने कहाँ से एक और सिपाही इधर आ निकला। इससे कबल कि मैं और राजू फायर करते इसने तेज़ आवाज़ में सीटी बजाना शुरू कर दी। इसकी सीटी के साथ ही मेरी पिस्टल ने शोला उगला और गोली इसकी खोपड़ी में जाकर लगी। पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। सीटी के ज़रिए एक दूसरे को होशियार करने की ताकीद की जा रही थी। मैंने 2 सब इंस्पेक्टरों की मशीन पिस्टल पर कब्जा कर लिया और इन दोनों को बेदरे गोलियां मार दी। हमारे हाथों से इस वक्त 9 खून हो चुके थे। थाने से बाहर आते ही हमने पुलिस जीप पर कब्जा किया और तेज़ रफ्तारी से उसको चलाते हुए वहाँ से लम्हा व लम्हा आगे बढ़ने लगे। थाने से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर आया तो रेणुका की सरगोशी सुनाई दी। शहरयार, जीप दाईं तरफ मोड़ लो। इसी तरफ वो रास्ता हमें बताती गई और मैं वहीं पर जाकर एक मंदिर के बाहर रुक गया। जीप यहाँ क्यों रुकवाई है? मैंने किसी बिखरे हुए शेर की तरह पूछा। मैंने जीप रोकने के लिए कहा। राजू सहम गया। फिर इसे घूर कर मैं देखने लगा। इसी तरह मंदिर के तहखाने में टाइगर और बाबा मौजूद है और इसी मंदिर में पंडित गिरधारी लाल भी है। रेणुका ने मेरे कानों में सरगोशी की। मैं जीप से नीचे उतरा। जैसे मैं जीप से नीचे उतरा, राजू ने भी जीप से उतरने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे सख्ती से मना कर दिया। तुम यहाँ पर ही मेरा इंतज़ार करोगे। इसने मेरी हदायत पर खामोशी से सर हिलाया। जीप से नीचे उतरकर मैं पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़ा, जो कि एक वसीओ अरीज़ अहाते पर सुर्ख पत्थरों की एक
इमारत तामीर हुई थी। इस मंदिर को बाहर से आते जाते कई बार मैं देख चुका था, लेकिन इसके अंदर जाने का इत्तेफाक आज पहली बार हुआ था। मैं बेधड़क बड़े तरीके से अहाते में दाखिल हो गया। नजर झुकाए तेज तेज कदम बढ़ाता चबूतरे की समझ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ पहुंच गया। मंदिर की तामीर ज़मीन से 20 फुट बुलंद एक चबूतरे पर की गई थी। चबूतरे के करीब रुक कर मैंने आसपास के माहौल का जायजा लिया। साधु और पंडित पुजारियों ने कपड़े पहन रखे थे और वो इधर उधर नजर आ रहे थे। इनके जिस्मों पर संदल के बुरादे जैसी कुछ चीज़ मली हुई थी। बाल तो बेहद बड़े हुए थे। यह सर अंडे के छिलके के मानद साफ थे। कुछ पुजारियों के हाथों में पीतल की लठियाँ भी थी, जो कि जल पानी के इस्तेमाल में लाई जाती है। इनके लिबास गेरू और सफ़ेद रंग के थे। गले में मालाएं झूल रही थीं। इनमें से अक्सर ओम की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। मैं सीढ़ियों के करीब खड़ा अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा बड़े मंदिर के अंदर दाखिल होना और यूं फिरना मुनासिब नहीं था। इस तरह बात ख़राब हो सकती थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि पंडित घरदारी लाल इस वक्त मंदिर के किस हिस्से में मौजूद है। मंदिर की पुश्त पर रिहायशी मकानात थे, जिनमें से पंडित और पुजारी रहा करते थे और बाहर निकल रहे थे। आते जाते पुजारियों की नज़रें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। अभी मैं इसी उधेड़पन में था कि एक पुजारी मंदिर से बाहर आई। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। सुर्ख रंग की साड़ी इसने ज़ेब तन की हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल एक खिले हुए गुलाब की तरह था। मैं इसको देखकर देखता ही रह गया। वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज से शर्माती हुई, नज़रें झुकाए हुए, छोटे छोटे कदम उठाती हुई चबूतरे के किनारे पर आ गई। इसने आखिरी बार झुककर मंदिर की तरफ प्रणाम किया और फिर साड़ी का पल्लू संभालती हुई वहाँ से जाने लगी। मैंने इसको देखा और एकदम आवाज़ दी, मेरी बात सुनो। मैंने गैर इरादी तौर पर इसे बुलाया था। इसमें मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे समझ नहीं आई कि मैंने इसको क्यों आवाज़ दे दी। जैसे ही इसने मेरी तरफ देखा वो मुझे कहने लगी जी। वो एकदम रुकी और आहिस्ता से घूमी, नजरें झुकाए, मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं आज पहली बार मंदिर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने रवानी से कहा, सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे ऊपर चले जाएं, भगवान के चरणों तक पहुँच जाएंगे, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके लहजे में तलवार की काट थी। शायद वो मुझे अभी भी कोई पंडित या हरीस पुजारी समझ रही थी। यकीनन इसके कान इसी किस्म की आवाज़ें सुनने के आदी हो चुके थे। जब भी तो इसने नज़रें उठाकर मुझे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। बड़े सीधे सादे मगर तर्ज भरे अंदाज में इसने जवाब दिया और चुप हो गई। मैं एक ज़रूरत के तहत यहाँ आया हूँ, मैं जल्दी से बोला। मुझे पंडित घरदारी लाल से मिलना है और मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। इसने पहली बार चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन पुजारी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सपाट लहजे में बोला, मुझे पंडित घरदारी लाल से मिलना है। क्या तुम्हें इसका पता है? वो मंदिर के पीछे इमली वाले पेड़ के नीचे रहते हैं। इसने बड़ी मासूमियत से मुझे जवाब दिया। मैंने इसे शुक्रिया कहा। इससे पहले कि मैं वहाँ से जाता, एक पुजारी बिल्कुल मेरे करीब आ गया। उसने बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा। मैं मुकम्मल लिबास में पहला आदमी था जिसको वो देख रहा था। इसकी निगाहों में मेरे लिए हकारत और नफ़रत का एहसास झलक रहा था। मुमकिन है इसने मुझे पहचान लिया हो कि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए वो अपनी बड़ी बड़ी खूनख्वार आंखों से मुझे देख रहा था। फिर खुश्क लहजे में बोला, कौन हो तुम और इस छोकरी से क्या बातें कर रहे थे? पंडित घरदारी लाल का पता दरियाफ्त कर रहा था। मैंने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, मुसलमान लगते हो। क्यों? इसने मुझे घूरते हुए पूछा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने स्पाट आवाज़ में जवाब दिया और फिर तेज़ी से पलटकर मंदिर के पिछले रास्ते की तरफ बढ़ गया। इमली के पेड़ के नीचे दूसरे मकानों से अलग थलग एक खूबसूरत और शानदार मकान मौजूद था। मैं सीधा इसकी तरफ बढ़ गया। मैं बगैर किसी से पूछते हुए मकान के अंदर दाखिल हो गया। घरदारी लाल पर मेरी नज़र पड़ते ही मैं इंसान से जानवर हो गया। मकान का दरवाज़ा बंद करते ही मैंने घरदारी लाल के ऊपर छलांग लगा दी। इसकी गर्दन मेरे आईनी पंजे के नीचे थी। मैंने अपने आप को भी जंतर मंतर पढ़ने के लिए इसने मुँह ही खोला था और मैंने पिस्टल की नार इसके मुंह में घुसा दी और इसे मैंने कहा, अब खामोशी से पड़े रहो। बाबा और टाइगर कहाँ हैं बताओ, वरना। मैंने पिस्टल पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मैंने सामने रखे सेब काटने वाली छुरी को उठाया और इसकी नोक इसकी आंख में पूरी कुव्वत के साथ उतार दी। वो शिद्दत से चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिस्टल इसके मुंह में थी, इसलिए वो चीख नहीं पा रहा था। वो चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर इसका जिस्म साकत हो गया। शायद वो तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। मैंने चाकू इसकी आंख में से वापस निकाल लिया। पिस्टल की नाल इसके मुंह में से निकाल कर चाकू एक बार फिर इसकी ज़ुबान के आर पार कर दिया। वो तकलीफ़ की शिद्दत से बिलबिला रहा था। अब मुझे बाबा
तक पहुंचाओ। ये छुरी इस तरह ही तुम्हारी ज़ुबान में रहेगी ताकि तुम कोई अपना जाप या मंत्र जंतर ना पढ़ सको। चलो, इस कमरे से बाहर चलो। वो चुपचाप मेरे आगे उठकर चलने लग गया। अभी हमने दरवाज़ा खोला ही था तो सामने वही पुजारन खड़ी थी जिसने मुझे आते हुए देखा था। गरदारी लाल की हालत देखकर वो बुरी तरह चौंकी और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसे कहा, रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो ठिठक कर वहीं रह गई। गरदारी लाल ने मुझे तहखाने में ले जाने के तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गरदारी लाल को वहीं रुक जाने के लिए कहा, अपने किसी चेले को बुलाओ ताकि वो बाबा और टाइगर को बाहर लाए। इसने दूर खड़े एक पुजारी को इशारे से अपने करीब बुलाया। जाओ, जाकर अंदर से दोनों आदमियों को बाहर लेकर आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। चंद लम्हे तक तो वो हिचकिचाता रहा, फिर तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला गया। सारे पंडित पुजारी मुझे देखकर एक जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। अचानक ही किसी पुजारी ने मुझे पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी पिस्टल की नली ने इसको ज़िंदा नहीं छोड़ा। अचानक ही मेरी नज़र तहखाने के दरवाजे पर पड़ी जहाँ से टाइगर बाहर आ रहा था। टाइगर के पीछे बाबा भी आते हुए नजर आए। शहरयार, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर टाइगर को गोली मारो और यहाँ से फ़ौरन निकलो। रेणुका देवी की सरगोशी मेरे कानों में उभरी। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए टाइगर को यके बाद दिगरे 3 गोलियां मारी। ठीक इसी वक्त राजू हाथ में पिस्टल लिए मुझ तक पहुंच गया। राजू, तुम बाबा को लेकर फ़ौरन यहाँ से बाहर निकलो। मेरे लहजे में तेज़ी थी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जल्दी करो, जाओ यहाँ से। राजू और बाबा तेज़ी से दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकल गए। अब तो मुझे इस मंदिर से बाहर पहुँचाओगे, मैंने गरदारी लाल से कहा, और वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह मेरे आगे चलने लगा। जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा, पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। तकरीबन कोई 20 सेकंड के बाद पुलिस मोबाइल मेरे नज़दीक पहुंच गए, लेकिन अब किसी भी सूरत में गरदारी लाल को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इधर पुलिस मोबाइल से नीचे उतरे तभी मैंने पिस्टल में मौजूद तमाम गोलियां गरदारी लाल के जिस्म में उतार दी। पुलिस वालों ने तेज़ी से मेरे गिर्द घेरा तंग करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे मारते हुए किसी पागल कुत्ते की तरह उठाकर मोबाइल में डाल दिया गया। पुलिस वाले राइफलें लिए मेरे गिर्द बहुत ज़्यादा होशियार होकर बैठ गए थे। अगर मैं ज़रा सी भी कोई हरकत करता तो ये लोग मुझे गोली मार देते। आज मेरे दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मुझे एक बार फिर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार मेरी निगरानी पर 6-7 सिपाही मौजूद थे और सब मुझसे इतने फासले पर थे कि मैं बासानी किसी पर हमला नहीं कर सकता था। अब मुझे इन पर हमला करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैंने इतराफ़ जुर्म कर लिया था। केस चलता रहा, पेशियों पर पेशियाँ होती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं इतराफ़ जुर्म कर चुका हूँ तो ये केस किस वजह से इतने तवालत पर इख्तियार कर रहा है। फिर एक पेशी हुई, गवाहों को अदालत के रूबरू बुलाया गया। इन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी। इसके बाद मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत हो गए और मुझे सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। आज से ठीक 3 दिन के बाद मुझे फांसी का हुक्म दे दिया गया था। मैंने भरी अदालत में एक तायराना नज़र डाली, लेकिन मुझे अपना वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया जो मेरे लिए आंसू बहाता। बाबा और राजू जो मेरे लिए अपने थे वो भी नहीं थे, लेकिन इनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। इतना इत्मीनान ज़रूर था कि राजू अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। मुझे अदालत से बाहर एक वैन में बिठाकर जेल तक लाया गया। इसके बाद मेरे हाथों और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई और मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी इतनी छोटी थी कि बामुश्किल इसमें पैर फैलाकर लेट सकता था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से किस तरह निजात हासिल करूं। मैं किन हालात से दो चार हो रहा हूं। मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं। इन हालात में किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। इन बुरे हालात में कोई भी इतने मेरे करीब नहीं था। इन ख्यालात के आते ही मैं अपने माजी के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। पार्वती देवी और रेणुका देवी दोनों ही मुझे मेरे माजी के बारे में बताने आई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी मुझे मेरे माजी के मुतालिक नहीं बता सकी थी। मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए अपने पहलू में जैसे मैंने हाथ पाँव हिलाए तो मेरी बेड़ियाँ अजीबोगरीब तरह से झुंझला उठी, जिसकी वजह से कोठरी के तमाम दरो दीवार गूंज उठे। कोठरी से दूर खड़ा एक सिपाही जल्दी से भागता हुआ अपनी राइफल लेकर कोठरी के बाहर आया। जब उसने मुझे इत्मीनान से बैठा देखा तो गर्दन हिलाकर वापस चला गया। 2 दिन इसी तरह सोते जागते गुजर गए। आज तीसरा दिन था और आज का दिन ही मुझे फांसी देने के लिए मुकर्रर किया गया था। मेरे दिल की धड़कनें लम्हा ब लम्हा बेतरतीब होती जा रही थी। न जाने क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। बुरी तरह से मैं झुंझला गया था। ठीक वक्त पर मुझे फांसी घाट पर ले जाया गया, लेकिन इससे कबल मेरी आखिरी ख्वाहिश के मुतालिक पूछा गया। मैं खामोश रहा। मेरे जहन में कोई आखिरी ख्वाहिश होती तो मैं बताता। मेरा जहन इस वक्त मुख्तलिफ सोचों से झटका हुआ था।
جن حالات میں میں گزر رہا ہوں، ان پرسرار حالات سے اگر کوئی اور گزرتا تو یقیناً اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا، لیکن میں ان حالات سے گزرنے کے باوجود اب تک اپنے ہوش و حواس پر قائم تھا۔ حالات میرے گرد اپنا دائرہ کار اتنی تیزی سے تنگ کر رہے تھے کہ میں الجھ کر رہ گیا۔ مجھے پھانسی گھاٹ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، میرے ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر میرے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں ان آخری لمحات میں رینوکا دیوی کو آواز دے رہا تھا، پاروتی دیوی کو بھی آواز دی، لیکن کوئی بھی میری آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھانسی گھاٹ پر ایسا سناٹا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب شور سناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی ہو۔ میرا جسم یوں تڑپ رہا تھا جیسے بغیر پانی کے مچھلی۔ میرے جسم کو مکمل طور پر ایک جھٹکا لگا اور میں ساکت ہو گیا۔ وہاں پر موجود ڈاکٹر نے میری موت کی تصدیق کر دی تھی۔ دنیا میں ایسے ہزاروں اسرار موجود ہیں، عقل جن کی توصیف پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم ہزاروں باتوں پر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے، انہیں ضعیف اعتقادی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ایسے ناقابل یقین بات یا حادثے سے گزرتا ہے تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی پرسرار حالات سے گزر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری گردن سے پھندا نکال لیا ہو۔ میرے چہرے پر پڑا کالا کپڑا ہٹا دیا گیا۔ کپڑے کے ہٹتے ہی میں بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے چیخ کر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں، مگر میری آواز میرے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش بیکار ہو گئی۔ میں لوگوں کو کس طرح بتاؤں کہ میں مرا نہیں ہوں؟ کس طرح؟ آخر کس طرح؟ یہ میری کسی عجیب بے بسی تھی۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ ان سب لوگوں کی نظروں کے سامنے مجھے پھانسی دے دی گئی تھی، اور وہاں پر کھڑے موجود ڈاکٹر نے میری موت کی تصدیق کر دی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں زندہ تھا، میرے احساسات زندہ تھے۔ میں ان لوگوں کی ایک ایک حرکت محسوس کر رہا تھا، مگر جسمانی طور پر میں نے چیخ چیخ کر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، مگر میری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں کو پشت سے کھول دیا گیا، مجھے اسٹریچر پر ڈال کر وہاں سے باہر لایا گیا۔ میرے پورے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے اپنے دماغ میں رنگ برنگے ستارے رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں گزرا ہوا ایک ایک پل یاد کر رہا تھا، کس طرح میں قبر میں پیدا ہوا تھا اور ان حالات تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک ہی مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا، میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ شاید مجھے اسٹریچر سے کسی ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر ایمبولینس کا دروازہ بند ہوا، میں نے خود آواز سنی۔ ایمبولینس ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر ایمبولینس مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر اچانک ہی ایمبولینس رک گئی۔ مجھے کسی طرف کے دروازے کھلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ایک گرجدار آواز سنائی دی، چپ چاپ جا کر اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ شاید ڈرائیور سے کوئی مخاطب تھا، لیکن ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، جو کہا ہے وہی کرو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ وہی گرجدار آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں تھی کہ جو بھی بات ڈرائیور کو دھمکی دے رہا تھا، اس کے ہاتھ میں یقیناً پسٹل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد گاڑی کو عجیب طرح سے اغوا کر لیا گیا، لیکن کیوں؟ ایسا کون کر سکتا ہے جس کو میری لاش کی ضرورت پڑی تھی؟ ایمبولینس ایک جھٹکے سے دوبارہ چل پڑی۔ میرے خیالات کی دنیا عجیب و غریب طرح سے آباد تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ایمبولینس ایک جگہ رکی، شاید کسی بنگلے کا پورچ تھا۔ پھر اسٹریچر کو باہر نکال کر مجھے اٹھائے ہوئے کچھ لوگ ایک طرف چل پڑے۔ 3-4 منٹ کے بعد مجھے اسٹریچر سمیت زمین پر رکھ دیا گیا اور لوگ میرے نزدیک چہل قدمی کرنے لگے۔ مجھے یہ سب محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں پر لانے والے کون لوگ ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد میں نے کئی آوازیں سنی، لیکن یہاں پر رہنے والے تمام لوگ عجیب و غریب طرح کے تھے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، انسان موت سے اتنا خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ اس بات کا مجھے اس وقت شدید احساس ہو رہا تھا۔ اچانک بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم سب لوگ نیچے والے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ بابا کی آواز سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، لیکن مجھے یہ خواہش عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے
बे इख्तियार बाबा को मुखातिब करने की कोशिश की, मगर अंजाम वही हुआ जो अब तक होता आ रहा था। मैं अपनी आवाज़ बाबा तक पहुंचा नहीं पा रहा था। चंद लम्हों के बाद मुझे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। कोई चलकर इस तरफ आ रहा था जहां मुझे रखा गया था। मैंने अपने करीब किसी को बैठते हुए महसूस किया। कोई 20 सेकंड के बाद मेरे कानों में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ गूंजने लगी। कोई बिल्कुल मेरे करीब तिलावत में मशगूल हो चुका। ए भाई, मैं ज़िंदा हूँ। मैंने इसे बताने की कोशिश की, मगर मैं नहीं बता सका। वो लापरवाह होकर तिलावत करने में मसरूफ़ रहा। जैसे जैसे कुरान मजीद की तिलावत के अल्फाज मेरे कानों में पड़ते जा रहे थे, लम्हा ब लम्हा मैं पुरसकून होता जा रहा था। मेरी कैफियत अंदरूनी तौर पर इस कदर तेज़ी से तब्दील हो रही थी कि मैं खुद हैरान था। चंद लम्हों पहले जो ज़हनी कलशारा था ख़त्म हो चुका था। इस वक्त मैंने अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस किया। इसने अपनी तिलावत मुकम्मल की और उठकर बाहर निकल गया। ये सिर्फ मेरा एहसास था। आंखें बंद होने के सबब मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे गुस्ल के लिए ले जाया गया। गुस्ल करने के बाद मुझे कफन पहनाया गया, यहाँ तक कि मेरा जनाजा भी तैयार कर लिया गया। लेकिन मैं बेबस किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। फिर कुछ लोगों ने मेरा जनाजा उठाकर मुझे बाहर लेकर गए। काफ़ी दूर तक वो अपने कंधे बदलते रहे और मुझे एक जगह पर ले जाकर वहाँ पर मेरा नमाज जनाजा अदा किया गया। उसके बाद दोबारा से मुझे एक गाड़ी में डाला गया। गाड़ी में डालने के बाद यकीनन मुझे कब्रिस्तान तक लेकर आए। फिर चंद कदम चलने के बाद एक जगह पर लाया गया जहाँ पर मेरी कब्र खोदी गई थी। फिर मेरे चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया गया, ऊपर वाली चादर उतार दी गई। मैं चीख चीख कर बताना चाह रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। कलमा शहादत की सदाई मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर मुझे कब्र में उतारा गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी गई। थोड़ी ही देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मुझे बेयारो मददगार दोबारा कब्र में छोड़कर सब लोग जा चुके थे। मैं कौन था? मैं कब्र का बेटा था। तो आज इसी कब्र में मैं किस तरह से कैद था? मैं ज़िंदा था, मैं मुर्दा नहीं था। आखिर इस कब्र की कैद से मैं बाहर कैसे निकलूँगा? ये लोग मुझे मुर्दा समझकर यहाँ पर दफना गए थे, लेकिन मैं ज़िंदा था। इनको बता नहीं पा रहा था। सारे हालात मेरी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। कैसे मैं कब्र से बाहर निकला था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज फिर उसी कब्र की कैद में वापस आकर वहीं पर लेट गया था। इस नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या शहरयार दोबारा कब्र से बाहर निकलेगा और कब्र से बाहर निकलने के बाद आगे शहरयार की ज़िंदगी में क्या होगा। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को कब्र का बेटा नावल के नेक्स्ट एपिसोड को विज़िट करना होगा, जो मैं कल ऑन एयर करूँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। मुझे कल तक इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।